Thank you very much, sir. Okay. So here, each chlorine share its one electron. अब एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो दूसरा भी क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा. ऐसा नहीं है कि एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन. हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो. Yes, sir. ओके ओके. हाँ, एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो दूसरा क्लोरीन भी एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा. ऐसा नहीं होगा कि एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो दूसरा क्लोरीन अपने 3 या 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे. ऐसा अगर शेयरिंग होता है तो उसको हम म्यूचुअल शेयरिंग नहीं करेंगे, नहीं कहेंगे. ठीक है. तो म्यूचुअल शेयरिंग क्या होता है कि इफ वन एटम शेयर इट्स वन इलेक्ट्रॉन देन अदर एटम will also be share its only one electron. Such a type of sharing is called as mutual sharing of electrons. And why they are share its electron? Because they want to complete its octet and make stabilize itself. Stabilization point of view वो sharing कर रहे हैं और वो stabilization point of view sharing कर रहे हैं, इसलिए वो अपने ऑर्बिटल्स एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं. Each chlorine overlap its orbital on other chlorine atom. Now, if you see in ClCl bond here, there are 4 lone pairs of each chlorine. Suppose first chlorine contain 3 lone pair itself and 1 lone pair is in sharing region. Again, second chlorine 3 pair itself and 1 pair is in sharing region. So each chlorine have complete their octet. And to achieve this type of stability, these atoms form the bond, and this is the need of formation of bond, right? And the mutual sharing of electrons by 2 or more atoms to attain the stable electronic configuration is called as covalent bond. It's called as covalent bond, which is represented simply by dash. If it is single bond, then single dash, and if it is double, double dash. For triple bond, triple dash, like this. Okay, now this theory has been formulated in 2 parts. First part is valence bond theory, which is generally called as VBT, and second part is molecular orbital theory, also called as MOT. Detailed knowledge of valence bond theory you have already taken in last session. So how this valence, why it is called as valence bond theory? Because of its valence electron interacting with each other, that's why. And their postulates, their what it called drawbacks, all these you have learned in last session. Especially we are going to learn here about the molecular orbital theory. What? Molecular orbital theory, that is MOT. Now see here, molecular orbital theory. This theory was developed by Hunds and Mulliken. आप Hunds भी कह सकते हो, Hunds भी कह सकते हो, ठीक है. This theory is developed by Hunds and Mulliken. But before starting this theory, the question should be arise in our mind that what is a molecule? Molecule यानी कि क्या होता है? तो simply molecule is a group of atom which are bonded together. The group of atom which are bonded together. For example, H2O, CCl4, CH4, all these are the molecules. And for example, in H2O, 2 hydrogens, these 2 hydrogens are the atoms. 1 oxygen is the atom. But when they are combined, they form a group, then we call them molecule. We call them molecule. In CCl4 also, if we consider single carbon, then it is atom. If we consider 4 chlorine, then these are also atom. But when they are bonded together, it become molecule. It's become molecule. So simply group of atom is called as molecule. In other words, the molecule is a system of nuclei and electrons in which each electron moves in a field of other electrons and all the nuclei. What is the meaning of this?
This is the standard definition of molecule. Now, here, electron of one atom can move in the field of other electron and all the nuclei. What is the meaning of that line? See here in the diagram. Here, hydrogen. Hello. Hello. Hello, sir. Huh. Is it going on properly? Yes. Okay, okay. Now see in this diagram, uh, if you see this ethane structure, 2 carbons are there and 6 hydrogen are there. The electrons of hydrogen is represented or noted in a pink color, and electrons of carbon is noted in green color, right? Now, the hydrogen share its 1 electron with carbon. The electron which is shared by hydrogen can revolve around the nucleus of कार्बन आल्सो, यानी कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन के न्यूक्लियस के सराउंडिंग में घूम सकता है, बराबर है। अब वो जो घूमने का रीजन है वो किसका है? वो कार्बन की इलेक्ट्रॉन का है। तो हाइड्रोजन ने जो शेयर किया हुआ इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन के रीजन में भी घूम सकता है और कार्बन के न्यूक्लियस के सराउंडिंग में भी घूम सकता है। वैसे ही अब जो कार्बन का शेयर किया हुआ इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का जो शेयर किया हुआ इलेक्ट्रॉन है जो ग्रीन कलर में दिखाया गया है हाइड्रोजन के साथ, अब वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के सराउंडिंग में भी रिवॉल्व कर सकता है, ठीक है। और जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन का पाथवे है वो पाथवे में भी वो रिवॉल्व कर सकता है। एंड दैट्स व्हाई इट सेज दैट द सिस्टम ऑफ न्यूक्लियाई, इट इज द सिस्टम ऑफ न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन्स इन व्हिच each electron moves in the field of other electrons, and all the nuclei, got it the definition? हेलो, हाँ, डेफिनेशन आपको समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ, the system of nuclei and electron in which each electron moves in a field of other electrons and all the nuclei, यानी कि शेयर किया हुआ कोई भी इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के रीजन में घूम सकता है और किसी भी न्यूक्लियस के सराउंडिंग में भी घूम सकता है। ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। ऐसे सिस्टम को क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल। Okay, okay. You may take the screenshot of this. Now we are moving on another slide. This theory use wave function psi to describe how electrons are distributed in a molecule. Now, why here psi is used? Because we know that electrons have dual nature, particle as well as wave. Electron has dual nature, particle as well as wave. And if it is behave as a wave, then it must have wave function. It must have wave function, which is represented by symbol psi, which is represented by psi. Got it? तो हम इलेक्ट्रॉन अगर वेव कंसिडर करते हैं तो हम उसका एक वेव फंक्शन रहेगा जो रिप्रेजेंट किया जाता है psi से. Now the probability of finding the electron in a particular region which is represented by psi square. Note down this one. The probability of finding the electron which is represented by psi square. This is not a psi2, it is a psi square. Okay. Psi square. The probability of finding the electron psi square is high is called as molecular orbital. Got it? Now see in this probability curve diagram, in first diagram, all these blue dot are not the electrons. These are not the electron. These are just the places where electron can find. Electron can found. ये सभी क्या है? ऐसी जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन मिल सकता है. आई बात ध्यान में? ये सभी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. ये क्या है? ये क्या है? ऐसी प्लेसेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन मिल सकता है. फॉर एग्जांपल सिंपली अगर कोई बच्चा गुम हो जाता है छोटा सा, तो उसकी मम्मी कहाँ के लिए देखेगी? आजू बाजू के घर में, इधर उधर, जहाँ पे वो जनरली जाता है. ठीक है, पूरे धामन गांव में देखेगी क्या?
नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। छोटा बच्चा धामन गांव में सभी सभी जगह रह पाएगा क्या? हर घर जाके देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। ऐसे ही घर देखेंगे जहाँ पे वो जनरली और यूजुअली जाता है, ठीक है, उसके प्रोबेबल प्लेस ही चेक करेगी। तो ये जो ब्लू डॉट्स है वो प्रोबेबल प्लेसेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन मिल सकता है 90%। और वो रीजन को अगर हमने मार्क किया तो वो मार्क दिखता है आपको रेड सर्कल से, दिख रहा है। तो वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की जहां पे वो इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। और जब हम वो बाउंड्री मार्क करते हैं तो वो बाउंड्री और बाउंड्री के अंदर का रीजन उसको कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसको क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वेयर द प्रोबेबिलिटी दैट इज chi स्क्वायर ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहां पे इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। ऐसा रीजन यानी कि होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। The same diagram which is represented by curve called as radial distribution curve. Got it? Now the peak, that in this curve, the peak shows the maximum region where electron can easily found. That is the probability, maximum probability where electron can find. That peak, what shows that? The region which is in the circle in the left diagram. What this peak shows? The So, sir, circle the in option the left diagram, right? Ah, Okay. yes, sir. Okay. Now the molecular orbital can be used. Again, this the use of molecular orbital can be done for the geometry, to calculate the geometry, energy level and other properties of molecule. तो हम मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पता कर सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, ठीक है। एनर्जी लेवल, अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का थोड़ा एनर्जी लेवल डिफरेंट होता है एटॉमिक ऑर्बिटल से। हमने एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल पता है हमें, 1s 2s, ठीक है। n1 n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। जैसे मैं शेल बता रहा हूँ एटम के, जिसका एनर्जी क्या रहता है? डिफरेंट रहता है, ठीक है। तो वैसे ही मॉलिक्यूल का जो नोटेशन रहता है वो रहता है सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार, डेल्टा, डेल्टा स्टार, इस तरह से रहता है जो हम आगे देखेंगे ही, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसका यूज कहाँ पे होता है? टू कैलकुलेट ज्योमेट्री, energy level and other properties of the molecule, ठीक है। These are the use of molecular orbital. Got it? समझे क्या? Now we are moving to the next topic of our theory. तो देखो, इंट्रोडक्शन हुआ है, पहले हमने वैलेंस बॉन्ड देखा, ठीक, कोवेलेंट बॉन्ड देखा, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है वो देखा, बाद में उसके जो मेन थेरीज है वो देखी, वीबीटी एंड एमओटी। उसमें हमने एमओटी स्टार्ट किया, एमओटी में हमने देखा मॉलिक्यूल क्या है, ठीक है। वाई देयर इज अ नीड ऑफ बॉन्डिंग भी देखा, लेविस थ्योरी ने, लेविस ने बताया है। फिर एमओटी डिस्कवर किसने किया? ओके, देन फंक्शन, वेव फंक्शन देखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन दैट इज chi स्क्वायर, वो देखा है। अभी हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखा, उसके यूजेस क्या है वो देखे। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा postulates और silent features of MOT. Silent features of MOT, that is postulates, and this is one of the important topic which is generally asked in exam. The postulates of or silent features of MOT, molecular orbital theory. तो MOT बनी कैसी है या फिर MOT किस पे बेस्ड है, वो जो पॉइंट्स है, उसके जो प्रिंसिपल्स है, वो प्रिंसिपल्स यानी कि उसके क्या हो गए? पोस्टुलेट्स हो गए। तो फर्स्ट वन इज देयर, द एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन और ओवरलैप टू फॉर्म अ न्यू ऑर्बिटल नोन एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या कहता है पहला पोस्टुलेट? जो दो एटम्स या दो से ज्यादा, when these two orbital of these two atoms overlap to form a new orbital, अगर एटम ए है और बी है, उनके अगर ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं तो एक नया ऑर्बिटल तैयार होता है, उसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। आई बात ध्यान में? एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप होने के बाद, दो एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप होने के बाद जो नया ऑर्बिटल तैयार होता है उसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है। एज अ रिजल्ट द एटॉमिक ऑर्बिटल लूजेस देयर आइडेंटिटी।
अब जनरली फॉर एग्जांपल क्या होता है कि कोई समझ लो एक s ऑर्बिटल है एटम का और दूसरा भी s ऑर्बिटल है दूसरे एटम का, वो अगर ओवरलैप होते हैं तो पहले तो वो स्पेरिकल थे, बिकॉज वी नो दैट द शेप ऑफ s ऑर्बिटल इज स्पेरिकल। और जब वो दो s ऑर्बिटल ओवरलैप हो गए तो एक ओवल शेप बनेगा। वो क्या बनेगा? ओवल शेप। तो स्पेरिकल जो एटॉमिक ऑर्बिटल थे उनका आइडेंटिटी या ज्योमेट्री क्या हो गया यहाँ पे? लॉस्ट हो गया। वो क्या बन गया अभी? ओवल शेप, अंडे के जैसा बन गया है। सही है ना? And that's why it says that as the result, the atomic orbital lose their identity. Got it? So first point is clear here. Hello. Okay. Now second postulate is molecular orbital gives electron probability distribution around a group of nuclei, same as the atomic orbital. तो हमने इससे पहले ही डायग्राम में देखा है कि ये वाले कि होता क्या है, ये एक सराउंडिंग में डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी बताता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या बताता है? जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है वो बताता है। वही हमारे सेकंड पोस्टुलेट में लिया हुआ है। एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल गिव्स इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड अ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई सेम एज द एटॉमिक ऑर्बिटल। जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में होता है वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, सिर्फ फर्क इतना है कि एटॉमिक ऑर्बिटल में न्यूक्लियस सिंगल रहता है, बट इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल न्यूक्लियस नेवर बी सिंगल, इट मस्ट बी टू और मोर देन टू, राइट? मॉलिक्यूल में जो प्रोबेबिलिटी रहेंगी इलेक्ट्रॉन की या फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनेगा वो दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ही बनेगा, और एटॉमिक ऑर्बिटल में सिर्फ एक न्यूक्लियस रहेगा। ओके, नाउ थर्ड पोस्टुलेट इज ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिटल्स are combined to form molecular orbitals which have comparable energy and orientation. वही दो एटम्स एक दूसरे पे ओवरलैप हो सकेंगे जिनका एनर्जी कंपेरेबल है, नियरली इक्वल है, नियरली इक्वल। ऐसा नहीं है कि एक की एनर्जी बहुत कम है और एक की एनर्जी बहुत ज्यादा है। ऐसे दो ऑर्बिटल, दो एटम्स के दो ऑर्बिटल मिक्स कभी नहीं हो पाते। जिनका एनर्जी बहुत ही एक दूसरे से मिलता हो, दैट इज इट इज कॉल्ड एज कंपेरेबल एनर्जी। ठीक है, यस है तो यस पे ओवरलैप होगा, 1s है तो 1s पे होगा, 1s है तो 2s पे ओवरलैप नहीं होगा, क्योंकि 1s का जो एनर्जी है और 2s का जो एनर्जी है वो कैसा है? टोटली डिफरेंट है। तो 1s पे ओवरलैप हो सकता है। 1s ऑर्बिटल ऑफ वन एटम कैन ओवरलैप ऑन द 1s ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम, बट नॉट द 2s ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम, बिकॉज 1s and 2s have different energies. Got it? So only those atomic orbitals are combined to form molecular orbital which have comparable energy or nearly same energy and orientation. Now moving toward the next slide, that is postulate number 4. The number of molecular orbital forms are equal to the number of atomic orbital combined. अब सपोज दो एटॉमिक के ऑर्बिटल कंबाइन हुए हैं तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। फॉर एग्जांपल 1s ऑफ वन ऑर्बिटल एंड 1s ऑफ अदर एटम एटम ऑर्बिटल कंबाइन, तो यहाँ पे दो एटम के दो ऑर्बिटल कंबाइन हुए हैं। सही है, तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अब वो दो कौन से बनेंगे? तो वो फिफ्थ पॉइंट में देखिए मॉलिक्यूल के कौन से ऑर्बिटल बनेंगे। व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन दे फॉर्म टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स नोन एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दैट इज AMA। एक्चुअली यहाँ पे चाहिए था ABMO। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो बॉन्डिंग क्या है, एंटी बॉन्डिंग क्या है, कैसे रहते हैं, वो हम आगे सब देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम सिर्फ पोस्टुलेट्स जान लेते हैं। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो रहता है उसका एनर्जी वो लोअर रहता है एटॉमिक ऑर्बिटल से। एटॉमिक ऑर्बिटल का जो एनर्जी है, जो कंबाइन होने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी है, उनसे एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंबाइन होने के, दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होने के बाद
जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है तो एक का एनर्जी बॉन्डिंग का एटॉमिक ऑर्बिटल के एनर्जी से कम रहता है और दूसरे का एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल के एनर्जी से ज्यादा रहता है। ठीक है, तो जिसका एनर्जी कम रहता है उसको कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जिसका एनर्जी ज्यादा रहता है, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी ज्यादा रहता है, दोज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैविंग more energy as that of atomic orbital is called as anti-bonding molecular orbital, right? तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग तैयार होते हैं, पता हो गया हमें कि बॉन्डिंग का एनर्जी कम रहता है और एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी ज्यादा रहता है। द बॉन्डिंग, नाउ सी हियर, sixth point, the bonding molecular orbital has lower energy and hence greater stability. Obviously energy कम है तो stability ज्यादा है। These terms are inversely proportional to each other. Lower energy more stability, high energy less stability. ठीक है, and then the corresponding anti-bonding molecular orbital. Now see seventh postulate, the bonding molecular orbitals are represented by sigma, pi, delta, etc. तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिनका एनर्जी कम रहता है, जो स्टेबलाइज्ड रहते हैं, वो रिप्रेजेंट कैसे किए जाते हैं? These are represented by sigma, pi and delta, right? While antibonding molecular orbitals are represented by sigma star, pi star, डेल्टा स्टार एक्सेट्रा। तो जिनका एनर्जी कम होता है, दो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहते हैं वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं सिग्मा, पाई एंड डेल्टा से, और जो एंटी बॉन्डिंग रहते हैं वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं सिग्मा स्टार, पाई स्टार एंड डेल्टा स्टार से। गॉट इट? नाउ eighth postulate is that the shape of molecular orbital is depend upon the type of combining atomic orbital. तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का शेप है वो कौन डिसाइड करता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का शेप कैसा रहना चाहिए? ये डिसाइड करता है एटम्स के, और जो एटम्स के ऑर्बिटल है जो ओवरलैप हो रहे हैं वो डिसाइड करते हैं कि मॉलिक्यूल का शेप कैसा रहना चाहिए। 1s अगर ओवरलैप हुआ तो शेप अलग रहेगा, 1s और p 2p अगर ओवरलैप होता है तो उसका शेप थोड़ा अलग रहेगा। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो शेप है वो कौन डिसाइड करता है? एटॉमिक ऑर्बिटल के एटम्स के ऑर्बिटल्स जो ओवरलैप हो रहे हैं। द शेप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहाँ पे है, एटॉमिक ऑर्बिटल कहाँ पे है? जब मॉलिक्यूल, जहाँ पे मॉलिक्यूल वर्ड चाहिए वहां पे मॉलिक्यूल ही चाहिए, जहाँ पे एटॉमिक चाहिए वहां पे एटॉमिक ही चाहिए। आई बात ध्यान में? द शेप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल, क्योंकि एटम के ऑर्बिटल ओवरलैप हो गए तभी ही मॉलिक्यूल बनेगा, मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल्स बनेंगे, राइट? नाउ हियर द नेक्स्ट पोस्टुलेट इज दैट the filling of molecular orbitals takes place by the same rule as for atomic orbitals, like they follow above principle, Pauli's exclusion principle and Hund's rule of maximum multiplicity. So here जिस तरह से एटम्स फिल किए जाते हैं, जो हमने फर्स्ट इवन आई थिंक फर्स्ट सेम में ही है ये, तो जैसे एटम का एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप होते हैं, हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर फिलअप इन एटॉमिक एनर्जी लेवल्स, तो जिसका एनर्जी सबसे कम रहेगा वो ऑर्बिटल पहले फिलअप किया जाएगा। किसने बताया है ये? अफबाउ ने। दिस इज कॉल्ड एज अफबाउ प्रिंसिपल। द नेम, this Aufbau is not the name of any scientist. The name, this is the German or French word. It's meaning that Aufbau means to build up. Aufbau means to build up. और हम जब कभी भी build up करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो सबसे पहले हम ग्राउंड फ्लोर बनाते हैं, या पहले 6th फ्लोर बनाएंगे? सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर बनाएंगे, ठीक है? बाद में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो जो सबसे नीचे है वो पहले क्रिएट होगा। तो वैसे ही जो सबसे जिसका एनर्जी सबसे कम है, जो ऑर्बिटल का, जो शेल का एनर्जी सबसे कम है, वो पहले फिलअप होगा। ये किसने बताया? अबाउ प्रिंसिपल ने।
पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी आपने पढ़ा ही होगा, पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। पॉलिश एक्सक्लूजन में क्या कहता है? Pauli's exclusion principle. What is mean by Pauli's exclusion principle? Hello, can anyone audible to me? Can anyone able to answer about the Pauli's exclusion principle? Hello. And Hund's rule of maximum multiplicity. So above Pauli's exclusion principle and Hund's rule of maximum multiplicity, ये तीनों भी टॉपिक आपके लिए अभी ये होमवर्क रहेगा, क्योंकि ये आपको फर्स्ट सेम में ही हुआ है। अबाउ तो बता दिया मैंने, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी और पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये आपको पढ़ के आना है, ठीक है। तो ये तीन रूल, जैसे ये तीन रूल का यूज करके जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल फिलअप किए जाते हैं, उसी तरह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का भी फिलअप होता है। एंड दैट्स व्हाई इट सेज दैट द फिलिंग ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टेक्स प्लेस by same rule as for atomic orbital. They are also follow above principle, Pauli's exclusion principle and Hund's rule of maximum multiplicity. Who is this Galaxy Note fan edition has entered the waiting room for meeting? कम से कम नाम तो डाल देते। Okay. So these are all about postulates of or silent feature of MOT। आप इसको postulates भी कह सकते हैं या फिर silent feature भी। एग्जाम में postulate कह के भी आ सकता है या फिर silent features या फिर principles भी। MOT की principle क्या है, ये भी नाम से आ सकता है। तो you should be ready for all that। अगर किसी को जितने आज टॉपिक हुए हैं कहीं प्रॉब्लम है postulate में बोलिए, या कोवेलेंट बॉन्डिंग में, या फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क द क्वेश्चन ऑन व्हाट्सएप। ओके, सो हियर वी आर admitting our session here. Okay, and to be continue, I'm writing here not thanks or like that, क्योंकि अभी अपना पूरा हुआ नहीं है, ये अभी कंटिन्यू चलते रहेगा, ठीक है, जब तक लॉकडाउन है तब तक। सो फॉर दैट टू बी कंटिन्यू, राइट। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप अभी अपना माइक अनम्यूट करके यहीं पे पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क हियर। तो आज जितना भी टॉपिक हुआ सबको समझ में आया? हेलो हेलो, हाँ तुम्ही आता, हाँ जेवढ्या आज जेवढा टॉपिक झाला तेवढा समजला का? Yes, sir. Yes, sir. ठीक आहे। तर याचा तुम्ही आता हा जो टॉपिक आहे आणि हे रेकॉर्डिंग केलेला आहे मी, आता जे स्टुडंट्स अटेंड करू शकले नाही त्यांच्याकरिता हा टॉपिक मी एकतर आपल्या व्हॉट्सअपच्या ग्रुपवर टाकून देईल, नाही लिंक प्रोव्हाइड करेल युट्यूबवर अपलोड करून, ते नंतर त्याला बघू शकतात। कळलं का? तर असं जर कोणी असेल तुमच्या मित्र किंवा मैत्रिणीपैकी ज्याच्याजवळ मोबाईल वगैरे नाही आहे, किंवा मोबाईल असेल तर कनेक्टिव्हिटी नाही आहे, किंवा तुम्ही सुद्धा जर तुम्हाला पुन्हा हा टॉपिक जर बघण्याची इच्छा झाली तर मी लिंक प्रोव्हाइड करून देईन तुम्हाला, तर तुम्ही पुन्हा हे बघू शकता। आणि यावरचे जे काही क्वेश्चन्स वगैरे आहे ते आताही विचारू शकता किंवा तुम्ही व्हॉट्सअप मध्ये सुद्धा विचारू शकता। कळलं? Okay, sir. Okay, now we are going to end our session here and good luck for another session.